Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start General Science for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 18, chapter number 2, cell division. So students, we are going to start chapter number 2 and our topic name is cell division. So first of all, we will learn about that what is a cell division. Cell division. Cell division is a process by which a cell divide into two daughter cell. So students, cell division, cell का मतलब क्या होता है? खुलिया, और division मीन तकसीम होना. तो cell division actually क्या है? Cell division एक process है जिसमें cell divide होते हैं और daughter cell बनाते हैं. The cell which divide is called parent cell. अब वो cell जो divide होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Parent cell बोलेंगे. The cell which are produced as a result of cell division are called daughter cell. जबकि वो cell जो division के division में result के तौर पर produce होंगे, जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? डॉटर सेल होंगे. स्टूडेंट्स क्लियर कर लें ये पॉइंट कि पेरेंट सेल हमेशा डिवाइड होते हैं और पेरेंट सेल से जो न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? डॉटर सेल होंगे. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासेस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेस. सो स्टूडेंट, सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले पेरेंट सेल जो है एक फेज से गुजरते हैं और उस फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड. अब इंटरफेस के दौरान क्या होगा? ये एक फेज है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होने से पहले जाता है. अब इंटरफेस के दौरान जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के वो क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट हो जाएंगे, मीन उनकी कॉपीज बन जाएंगी. कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डिवेल्प, मीन जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या बन जाएंगी? कॉपीज बन जाएंगी. The process of cell division involves two phases. अब जो cell division का process है वो मज़ीद two phases में divide है. First one is nuclear division and the second one is cytokinesis. So students, first of all I will told you about what is a nuclear division. Nuclear division में क्या होता है कि nuclear division में nucleus की division होती है. जब भी सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन होगी. बट जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एक्चुअली साइटोकाइनेसिस है. तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है. Cell division is of two type which are called mitosis and meiosis. So students, cell division दो तरह की होती है. एक को हम mitosis कहेंगे और सेकंड को हम क्या कहेंगे? meiosis कहेंगे. First one is mitosis. Mitosis is a process by which the parent cell divide into two daughter cell. Mitosis वो process है जिसमें parent cell divide होंगे और two daughter cell बनाएंगे. Here is a diagram of mitosis. Here you can see that it's a process of interphase, and during interphase contain during when cell division take place into two phases. First one is nuclear division and the other one is cytokinesis. तो इंटरफेज के दौरान पेरेंट सेल डिवाइड होंगी और जब सेकंड फेज जो आएगा सेल डिवीजन का वो होगा, उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन है. अगर आप देखें तो न्यूक्लियर डिवीजन में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और जिसका जो सेकंड स्टेप था वो था साइटोकाइनेसिस. अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और डॉटर सेल्स क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं. Page 21. With same number of chromosome as in the parent cell. So students, mitosis का मैंने आपको बताया कि parent cell divide होंगे टू daughter cell में और number of chromosomes जो है वो daughter cell में same रहेगी. जितने parent cell में chromosome थे same उतने ही daughter cells में भी होंगे. The number of chromosome is double during interphase. But interphase के दौरान जो chromosomes है उनकी तादाद क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे. Two set of chromosome are formed during mitosis. When the nucleus of parent cell divide, the two set of chromosome are distributed equally in the टू डॉटर न्यूक्लियाई. अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं इंटरफेस के दौरान, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे. मीन अगर क्रोमोसोम 2 है तो 4 हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएंगे. अब जो क्रोमोसोम के 2 सेट्स बनेंगे, इसके बाद क्या होगा कि क्रोमोसोम के 2 सेट बनेंगे. माइटोसिस के दौरान जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो जो 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के वो डॉटर सेल है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. मीन पेरेंट सेल के न्यूक्लियस डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. 2 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल के अंदर मौजूद हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 2 क्रोमोसोम होंगे. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन अ शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस की जब डिवीजन हो जाती है तो एक ग्रूव अराइज होता है साइटोप्लाज्म के मिडल में जो डीप होता जाएगा और सेल को डिवाइड कर देगा इनटू 2 डॉटर सेल में और हर डॉटर सेल के अंदर क्या होगा? अपना न्यूक्लियस होगा. सेकंड स्टेप
second topic is meiosis. Meiosis is a process by which the nucleus of a cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell. So student, माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस सेल का 2 दफ़ा डिवाइड होगा और 4 डॉटर सेल बनाएगा. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हर डॉटर सेल में होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, मीन कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. हियर इज अ डायग्राम ऑफ मियोसिस. Here you can see that parent cell having 4 chromosome. parent cell के पास 4 chromosomes हैं और meiotic 1 division. meiosis में हमारे पास 2 steps हैं. First step is meiotic 1 division and the second one is meiotic 2 division. After meiotic 1 division, the daughter cell have 2 chromosome each. meiotic 1 division के बाद क्या होगा कि daughter cell में 2 chromosome होंगे, हर daughter cell में 2 chromosome होंगे. At this stage, each chromosome has been shown to have 2 chromatids. और इस स्टेज पे हर chromosome ये शो करेगा कि उसके पास कितने chromatids हैं, 2 chromatids हैं. और meiosis में हमारे पास 4 daughter cells बनते हैं. माइटोसिस में हमने कहा था हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे, जबकि मियोसिस में हमारे पास 4 डॉटर सेल बनते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर करूँ कि मियोसिस जो है ये सेक्सुअल पार्ट्स में होती है, जबकि माइटोसिस जो है वो बॉडी के हर सेल में होती है. माइटोसिस मियोसिस क्या होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, जबकि माइटोसिस जो है वो बॉडी के तमाम सेल्स में होती है. The process of meiosis consists of 2 divisions, meiotic 1 division and meiotic 2 division. During meiotic 1 division, the number of chromosomes is reduced to half as compared to parent cell. meiotic division 1 के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम की जो तादाद है वो reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी as compared to parent cell. parent cell के पास अगर 4 सेल लें तो डॉटर सेल में कितने आ जाएंगे, 2. meiotic 2 division is similar to mitosis, जबकि meiotic 2 division meiotic 2 division किसके सिमिलर है, माइटोसिस से सिमिलर है. बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन इन द 4 डॉटर सेल, क्योंकि हाफ नंबर अभी भी 4 डॉटर सेल्स में मौजूद होंगे. डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. meiosis. During mitosis, 2 daughter cells are formed from the parent cell. Students, here is a clear difference between mitosis and meiosis. You can see माइटोसिस के दौरान क्या हो रहा है कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगे पेरेंट सेल से, जबकि मियोसिस के दौरान 4 डॉटर सेल्स बनेंगे पेरेंट सेल से. दोनों 2 डॉटर सेल माइटोसिस में किससे बन रहे हैं, पेरेंट से बन रहे हैं. मियोसिस में भी पेरेंट सेल से बन रहे हैं, बट यहाँ पर डॉटर सेल की तादाद ज़्यादा है. मियोसिस में डॉटर सेल हमारे पास 4 हैं, जबकि माइटोसिस में हमारे पास डॉटर सेल 2 हैं. The number of chromosome in the daughter cell remain the same as in the parent cell. अब माइटोसिस में क्या होगा कि जो डॉटर सेल हैं वो सेम रहेंगे. पेरेंट सेल जितने उतने ही डॉटर सेल भी प्रोड्यूस होंगे, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज reduced एज कंपेयर्ड टू दैट इन द पेरेंट सेल. बट मियोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम की जो तादाद है वो डॉटर सेल में reduce हो जाएगी पेरेंट्स की निस्बत. स्टूडेंट्स, माइटोसिस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम हैं पेरेंट सेल में जितने उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स होंगे. बट मियोसिस में क्या होगा कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है, जो उनके नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, reduce हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल. अब माइटोसिस कहाँ पर अकर होगी, बॉडी के जितने भी जनरल सेल हैं हर सेल में माइटोसिस होगी. बट मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म एंड एग इन एनिमल और स्पोर्स इन प्लांट्स. जबकि जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स के. हेरिडिटी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. जब बहुत सारी खुसूसियात, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी. अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं? आपको पता है हमारा आई कलर, सपोज दैट अगर हमारे वालिदैन में से किसी का आई कलर ब्लैक है तो उनकी औलाद में से भी किसी ना किसी का कलर ब्लैक ज़रूर होगा. अगर ब्लू है, बहुत सारे लोगों का ब्लू कलर होता है, आइज़ का ब्लू या ग्रीन, ये भी कलर हैं, तो अगर उनकी आइज़ का ये है तो उनकी औलाद में से भी किसी ना किसी का होगा. इसके अलावा बहुत सारे और भी आई कलर हैं, जस्ट लाइक ब्राउन, हैज़ल वगैरह. स्किन कलर भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होता है. हेयर कलर भी होता है. हेयर कलर में अगर आप देखें, अगर पेरेंट्स का ब्राउन है तो उनकी औलाद का भी ब्राउन होगा, या फिर ब्लैक है तो ब्लैक होगा. इसके अलावा अगर पेरेंट्स के बाल जो हैं वो कर्ली हैं तो उनके बच्चों के बाल भी किसी हद तक कर्ली होते हैं, या फिर समहाउ स्ट्रेट भी होते हैं. लाजमी नहीं है कि अगर पेरेंट्स के बाल बहुत कर्ली हैं तो
औलाद जो है उसके भी हों। सम टाइम ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये शिफ्ट ट्रांसफ़र होती हैं और सम टाइम नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी क्या होती है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये करेक्टरिस्टिक्स शिफ्ट हो जाती हैं। फ्री और अटैच्ड ईयर लूप, स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ्री और अटैच्ड ईयर लूप भी जो है ये एक ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक होती है। हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इंटेलिजेंस, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होती हैं। Basis of heredity. The basic physical and functional unit of heredity is called gene. अब जीन क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। हेरिडिटी का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन है। अब जीन क्या करेगा, एज अ इंस्ट्रक्शन एक्ट करेगा टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। अब जीन एक्ट करेगा इंस्ट्रक्शन के तौर पर और कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएगा और उन मॉलिक्यूल्स को हम किसका नाम देंगे, प्रोटीन्स का नाम देंगे। जीन अकर इन पेयर्स, अब जीन किसकी फॉर्म में अकर होते हैं, हमेशा पेयर्स की फॉर्म में अकर होते हैं। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म, tallness, dwarfness, eye color, free ear loop, attached ear loop is controlled by a pair of gene. स्टूडेंट्स ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, इनको कौन कंट्रोल करता है, पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को ये बात मैं क्लियर कर लूँ, जीन्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और हमारी जितनी भी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको पेयर ऑफ जीन ही कंट्रोल करते हैं। One member of a gene pair come from male parents while the other come from the female parents. अब जीन का जो पेयर बनता है उसमें से एक पेयर है जो वो मेल पेरेंट्स मीन फादर से आएगा और जो सेकंड पेयर है वो फीमेल से यानी आपकी मदर से आएगा। Where are genes फाउंड फिजिकली, अब हमें ये नहीं पता कि जीन फिजिकली कहाँ पर पाए जाते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पर। जीन्स और द सेक्शन ऑफ डीएनए, अब जीन्स क्या हैं, हमने कहा जीन्स फिजिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन्स एक्चुअली क्या है, डीएनए के सेक्शन है। डीएनए मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। सो स्टूडेंट्स जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए और a set of information for the development of different character in an organism, DNA is called hereditary material. So students, DNA mean deoxyribonucleic acid actually क्या है, hereditary material है। मीन हमारी heredity से related जो भी info होती है वो DNA में store होती है। DNA and protein are the component of chromosome. अब DNA और protein क्या है, chromosome के components हैं, parts हैं, अज्जा हैं। क्रोमोसोम और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है फिजिकली ये क्या होते हैं, थ्रेड, धागे की तरह होते हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, अब क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है कि ये थ्रेड लाइक होते हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ये एक अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आते हैं। आ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म कॉल्ड क्रोमैटिड्स, अब जो टिपिकल क्रोमोसोम है वो हमेशा हमें किस तरह से नजर आता है कि उसके 2 आर्म्स होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर, अब ये जो पार्ट्स होते हैं इनके दरमियान में ये अटैचमेंट होती है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वो पॉइंट जहाँ पर इसके दोनों आर्म आपस में मिलते हैं उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन्स एंड डीएनए इज शोन इन द फिग 2.3। Fig 2.3 chromosome, genes and DNA. So students, it's a structure of DNA. Here you can see that there are 4 main bases which make the structure of a DNA: adenine, thymine, cytosine and guanine. ये genes हैं और ये सेंट्रोमियर। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है आपके क्रोमोसोम की, आप देख सकते हैं ये 2 आर्म्स होते हैं, हेयर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इट्स अ न्यूक्लियस, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस शो किया हुआ है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट्स वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक और कांस्टेंट होते हैं। इन जनरल बॉडी सेल में जो सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं। द क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, अब जनरल बॉडी सेल में जो क्रोमोसोम्स है वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में अपीयर होंगे। बट द गैमीट्स sperm or egg or spores which are formed by meiosis contain one number of each chromosome pair. For example, in men, every somatic cell has 46 chromosome in the form of 23 pairs, but every sperm or egg cell has 23 chromosome. So students, जो हमारे somatic cells हैं, general body cell हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो जब वो पेयर की फॉर्म में आते हैं वो 23 होते हैं। बट जो स्पर्म और एग सेल होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब हमें नहीं पता कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताएं, आप इनको क्लियरली देख लें और सुन लें। मेन के अंदर कितने हैं क्रोमोसोम्स, 46 हैं।
मैज के अंदर कितने 20, मंकी के अंदर 48, ऑनियन के अंदर 16, कैट के अंदर 30 एंड पी के अंदर 14। ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, आपके MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पता होनी चाहिए। Watson and Crick model of DNA. Each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides in DNA. These are adenine, thymine, cytosine and guanine. So students, मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा DNA है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारा जो DNA की जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये डबल हेलिक्स है। फर्स्ट स्ट्रैंड एंड द सेकंड स्ट्रैंड इज, और ये 4 मेन बेसिस से बना होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गवानीन से बना होता है। अकॉर्डिंग टू वॉस्टन एंड क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड। अब वॉस्टन और क्रिक के मुताबिक ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को इन 2 साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है और ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में जो लिंक होते हैं क्रॉस बैंड से, लाइक अ लैडर। अगर आप इसको देखें तो इसकी शक्ल बिल्कुल सीढ़ी की तरह है, लैडर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गैमीट्स बाय meiosis the number of chromosome is reduced to half in the gametes. Haploid sperm or egg are produced. It means the hereditary material is also reduced to half in the gametes. So students, here is a topic transmission of characteristics. So आपको पता है कि हमारे बहुत सारे characteristics ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट लाइक आपका हेयर कलर, स्किन कलर और आपकी इंटेलिजेंस, हाइट, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम क्लियरली यहाँ पर पढ़ेंगे, हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है। अब गैमीट्स में हमारे पास क्या है, स्पर्म और एग। बाय मियोसिस, मियोसिस के दौरान जब ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो रेड्यूस हो जाएंगे गैमीट्स में। हैप्लॉइड स्पर्म और एग आर प्रोड्यूस, तो हैप्लॉइड हमारे पास मीन n नंबर ऑफ स्पर्म और एग प्रोड्यूस होंगे। इट्स मीन द हेरिडिटी मटेरियल इज ऑल्सो रेड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास स्पर्म और एग हाफ प्रोड्यूस होते हैं, रेड्यूस होते हैं, बनते हैं, तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो भी रेड्यूस हो जाएगा। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मैट, जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म मैट करेंगे, जो हैप्लॉइड स्पर्म सेल होंगे मेल सेल से, वो हैप्लॉइड एग सेल जो कि फीमेल सेल से हैं, एग सेल फीमेल से होंगे और स्पर्म सेल मेल सेल से होंगे। जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो डेप्लॉइड सेल बनेगा। स्टूडेंट्स आप देखें, जब ये सेपरेट थे, स्पर्म और एग सेल सेपरेट थे तो ये हैप्लॉइड थे, मीन n था। लेकिन जब आपस में ये मेल और फीमेल सेल फ्यूज़ हुए तो ये डेप्लॉइड 2n बन गया और जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल इज रीस्टोर्ड इन द जाइगोट। अब इस तरीके में क्या होगा कि हाफ हेरिडिटी मटेरियल है वो मेल से लेगा, हाफ हेरिडिटी मटेरियल है वो फीमेल से लेगा। जब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज़ होंगे तो एक कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल जाइगोट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल इज रीस्टोर्ड इन द जाइगोट, तो जाइगोट में जो हेरिडिटी मटेरियल होगा वो कंप्लीट रीस्टोर होगा। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर इन द जाइगोट। जितनी भी फिजिकल, जितनी भी हमारी ज़ाहिरी खुसूसियात होंगी या फिजिकल यूनिट होंगी वो सब की सब जाइगोट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डिवेल्प इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। अब जाइगोट क्या होगा, वो मुख्तलिफ चेंजेस उसमें होंगी, टाइम के साथ साथ जाइगोट के अंदर तब्दीलियाँ आती जाएंगी और टाइम पीरियड गुजरने के बाद जाइगोट जो होगा वो फुल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि उस ऑर्गेनिज्म ने अपने फादर से भी ली होंगी और मदर से भी ली होंगी। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। अब जाइगोट को हम कह सकते हैं कि ये वो फर्स्ट सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। The characters such as eye color, skin color, hair color, free or attached ear loop, height, intelligence are transmitted from parents to offspring. So students, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। अब इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती हैं। अब आपको क्लियरली पता है कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएंगी। आपकी स्किन कलर, आई कलर,
फ्री और अटैच्ड ईयर लूप, ये तमाम वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होंगी। बट कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स। अब वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस नहीं हो सकती? सपोज दैट आपके पेरेंट्स में से अगर किसी का बाजू नहीं है, वो मतलब माजूर है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स कभी भी बच्चे में डेवलप नहीं होगी। जब उनका बच्चा पैदा होगा, उनका बेबी होगा, तो वो कंप्लीट होगा, उसके बाजू, उसकी लेग्स बिल्कुल कंप्लीट होंगी। तो ये जो डिसएबिलिटी है किसी भी पर्सन की, या फिर कोई और किसी बीमारी की वजह से सपोज दैट अगर उसका बाजू या उसकी लेग डिसेबल हो गई है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी सूरत नेक्स्ट जनरेशन में या उनके ऑफस्प्रिंग में डेवलप नहीं होगी। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या हैं? नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स, unit number 2 is done. Now it's your home task. You have to make 5 MCQs from each topic of this unit. Jazakillah fi amanillah.